वेलकम बैक टू मी विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर। और आज हम करने वाले हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। तो ये अगला वाला पार्ट है जो कंटिन्यू होने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा ऑल इन वन प्लेटफॉर्म जहां आपको हर क्लास में, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स और मिल जाए वीडियोस और समरी, तो ये वही प्लेटफॉर्म है, आप ही के लिए अवेलेबल है। सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो देख क्या रहे हैं, फटाफट से वीडियो देखिए और उसके बाद कर लीजिए डाउनलोड जो चाहिए वो। तो चलिए आइए क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपाउंड वर्ड्स। ये बहुत ही फन है, चलो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक कंपाउंड वर्ड होता क्या है। देखिए, अ कंपाउंड वर्ड इज अ वर्ड फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग। जैसे एग्जांपल्स हैं सनलाइट, वेल प्लान्ड और पैडी सीड्स। सिंपल है ना? मतलब जब दो अलग अलग वर्ड्स जुड़कर एक नया वर्ड बनाते हैं जिसका एक बिल्कुल नया मीनिंग हो, उसे ही हम कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो अब जब हमें पता है कि कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, चलिए एक मजेदार मैचिंग गेम खेलते हैं और कुछ नए वर्ड्स बनाते हैं। रेडी? लेट्स गो। Alright, here is our first challenge. As you can see on the screen, here is question 1. You need to create new compound words by matching the words from column 1 with the correct words in column 2. तो आपको column 1 के words को column 2 के सही word से match करना है ताकि एक नया compound word बन सके। चलो ध्यान से देखो सारे words को। Think about how these simple words can join to make completely new ones. Now is a great time to pause and try to write the answers in your notebook. चलो अपनी notebook में answers लिखने की कोशिश करो. Take your time. Okay, let's check the answers. Let's see how many you got right. First, quick matches with witted to become quick-witted. Quick-witted का मतलब है जो बहुत हाजिर जवाब हो. Next, we match soft with spoken to create soft-spoken, यानी जो बहुत धीरे और प्यार से बात करता है. Then, common joins with sense to make common sense, जिसका मतलब है सामान्य ज्ञान. House and hold combine to make household, यानी घर गृहस्थी से जुड़ी चीजें. Book and store become bookstore, बिल्कुल सही, किताबों की दुकान. Ill combines with tempered for ill-tempered. ये उस इंसान के लिए यूज होता है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए. Sky and blue make the color sky blue, यानी आसमानी रंग. And finally, dance and hall create dance hall. Excellent work. Great job on the matching challenge, everyone. Now that we've learned these new words, let's see how we can use them. We're moving on to an interesting story puzzle. चलो इन नए words को एक story puzzle में इस्तेमाल करते हैं. This is going to be exciting. Okay, here's our next puzzle. You need to fill in the blanks using the compound words we just created. I'll read the whole story for you. Ravi was I blank, always speaking calmly even in arguments. He grew up in a lively I blank where he learned to handle different personalities. His friend Arun, however, was 3 blank and often lost his patience. Despite this, Arun admired Ravi's 4 blank thinking. One evening, as they passed a 5 blank, they saw some performers rushing out. Ravi noticed that one of them dropped a 6 blank book on the ground. Is this yours? He asked. Oh, thank you, young man, the performer smiled. It's a recent purchase from the 7 blank round the corner. True to his nature, Arun promptly said to Ravi, it's 8th blank that it's not from a bakery but bookshop. Ravi smiled and they walked on. अब आपको सोचना है कि इन खाली जगहों में कौन से words आएंगे. The key is to understand the meaning of each sentence to pick the right word. हर sentence का meaning समझो और सही word चुनो. Take a moment to think and write the answers in your notebook. Let's complete this fun story together. And here are the answers. Let's read the completed story out loud together. Ravi was I, soft-spoken. He grew up in a lively I household. His friend Arun, however, was ill-tempered. Arun admired Ravi's quick-witted thinking. They passed a V dance hall, dropped a V sky blue book, purchased from the V bookstore. It's V common sense that it's not from a bakery but bookshop. Now, let's understand why we chose these words. Number 1 is soft-spoken, क्योंकि Ravi शांति से बात करता था. Number 2 is household, मतलब एक जीवंत घर में पला बड़ा. Number 3 is ill-tempered, क्योंकि Arun गुस्से वाला था. Number 4 is quick-witted, क्योंकि Ravi तेजी से सोचता था. Number 5, they passed a dance hall. Number 6, the book's color was sky blue. 7, it was from a bookstore. And finally, number 8, it's just common sense. This really shows how perfectly these words fit into the story. शाबाश बच्चों, बहुत ही बढ़िया काम किया है आप सबने। आज आपने कंपाउंड वर्ड्स को ना सिर्फ समझा बल्कि उन्हें इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। You are now a compound word expert. Keep practicing and keep learning. चलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लॉजेस को पहचानना। मजा आएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इफ वाले सेंटेंसेस के अलग अलग टाइप्स और उनके रूल्स को समझेंगे। ये सारे एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक से ही हैं, सो लेट्स लर्न। चलिए इस टेबल को आराम से देखते हैं।
सेंटेंस नंबर 1 है इफ यू लाइक आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। इसमें यूज हुए हैं सिंपल प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट मॉडल। इसका एक्सप्लेनेशन है द कंडीशन इन द इफ क्लॉज मे और मे नॉट बी फुलफिल्ड। द प्रेजेंट टेंस रिफर्स ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। मतलब इसमें जो इफ वाली कंडीशन है वो फ्यूचर में पूरी हो भी सकती है और नहीं भी, एक पॉसिबिलिटी है। अब सेकंड सेंटेंस, इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग आवर फार्मर्स वुड सफर। यहां टेंसेस हैं सिंपल पास्ट प्लस पास्ट मॉडल और एक्सप्लेनेशन कहता है द कंडीशन इन द इफ क्लॉज एक्सप्रेसेस अ हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। यानी ये एक काल्पनिक यानी कि एक इमेजिनरी सिचुएशन है। हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। और अब थर्ड सेंटेंस, इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। इसके टेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसका एक्सप्लेनेशन है द कंडीशन इन द इफ क्लॉज डिस्क्राइब्स व्हाट द स्पीकर वुड हैव डन डिफरेंटली इफ द पास्ट सिचुएशन हैड बीन डिफरेंट एंड इट इज इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई इट इन द प्रेजेंट। तो इसका मतलब हुआ कि हम पास्ट की किसी बात के बारे में सोच रहे हैं जो अब बदली नहीं जा सकती। एक तरह का रिग्रेट है कि काश पहले पता होता तो कुछ और करते। ओके, तो अब जब हमने रूल्स को अच्छे से समझ लिया है, टाइम है थोड़ी प्रैक्टिस का। चलिए अब इन सेंटेंसेस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं। अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। In sentence 1, if you like is the subordinate clause, if clause, and I will try my best to resolve this matter is the main clause. Identify the subordinate and main clauses in sentences 2 and 3. तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया गया है जहां if है वो है subordinate clause। अब आपकी बारी है, आपको सेंटेंस नंबर 2 और 3 में subordinate clause और main clause को ढूंढना। Let's start with sentence number 2. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. चलिए सोचिए और जल्दी से अपनी नोटबुक में लिखिए इसका सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है और मेन क्लॉज कौन सा है। ओके, टाइम टू चेक योर आंसर। तो सेंटेंस 2 में सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी हमारा इफ क्लॉज है इफ बाय चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, और जो बचा हुआ हिस्सा है यानी मेन क्लॉज वो है आवर फार्मर्स वुड सफर। इजी था ना? मुझे पूरा यकीन है आप सबका आंसर एकदम करेक्ट होगा। फैंटास्टिक। अब आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। ध्यान से पढ़िए। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। चलिए इसका भी सबऑर्डिनेट और मेन क्लॉज फटाफट से अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और ये रहा सेंटेंस 3 का आंसर। द सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी इफ क्लॉज है इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, और हमारा मेन क्लॉज है आई वुड हैव चोजन अनदर डे। एक्सीलेंट वर्क। तो याद रखिएगा सबसे आसान तरीका है इफ को ढूंढना। जहां इफ है वहीं आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वेल डन एवरीवन, शाबाश। आप सबने बहुत ही अच्छा काम किया। देखा प्रैक्टिस से इंग्लिश ग्रामर कितनी इजी हो जाती है। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। Fantastic work, everyone. अब our time है second exercise का। इसमें हमने जो अभी सीखा है ना उसको अप्लाई करेंगे। We're going to match the two halves of sentences to make them complete. मजा आएगा? Ready हो? Okay, here are the instructions. Now match the subordinate clauses, if clauses, in column 1 with the appropriate main clauses in column 2 to make complete sentences. So it's pretty straightforward. Column 1 में है सारे if clauses, the conditions, और column 2 में है the main clauses, the results. हमें बस सही जोड़ी बनानी है. It's like a puzzle. Alright, let's check the correct answers now. You can check them against what you've written in your notebook. So the very first correct pair is, if I had a magic wand, matches with C. I would give myself wings. Now why is this a match? क्योंकि ये एक hypothetical यानी एक imaginary situation है। अगर मेरे पास जादू की छड़ी होती, which is not real, right? तो मैं खुद को पंख दे देता। So grammatically जब भी if clause में simple past tense had use होता है तो main clause में हम past model यानी would का use करते हैं। देखा? Logic है। Next up, the second match is, if it rains tomorrow, goes with E, we will stay indoors and play board games. यहाँ we're talking about a possible future action. एक possibility है। अगर कल बारिश होती है तो ये एक real condition हो सकती है। इसीलिए if clause में हम simple present tense यानी rains का use करते हैं और main clause में present model यानी will का। Alright, a third pair, if you had listened carefully, matches perfectly with F, you would have solved the puzzle. अब ये थोड़ा डिफरेंट है। ये पास्ट की एक ऐसी कंडीशन है जो पूरी नहीं हुई। अगर तुमने ध्यान से सुना होता, इसका मतलब क्या है कि तुमने ध्यान से नहीं सुना तो तुम पजल सॉल्व कर लेते। सो फॉर दीज काइंड्स ऑफ पास्ट कंडीशंस द रूल इज इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड लिसन्ड और मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी सॉल्व्ड। गॉट इट? मूविंग ऑन टू नंबर 4, द करेक्ट मैच इज IV. इफ यू फिनिश योर होमवर्क विद A, वी विल गो टू द थिएटर। ये बिल्कुल सेकंड वाले जैसा है। रिमेंबर, अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। अगर तुम होमवर्क फिनिश करते हो तो हम थिएटर जाएंगे। सिंपल कंडीशन, सिंपल रिजल्ट। तो इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में प्रेजेंट मॉडल विल। Number 5. This is a fun one. If I were invisible goes with B. I would sneak into the secret room. Again, this is purely imaginary, काल्पनिक। अगर मैं invisible होता, I can't be, right? तो मैं secret room में चला जाता।
So for these imaginary situations, we use simple past tense जैसे were in the if clause और past modal would in the main clause. And finally, the last pair. If the alarm had rung, connects with D. The boys would have woken up on time. ये भी past की एक condition है जो पूरी नहीं हुई. अगर alarm बजा होता, but the fact is it didn't, तो लड़के time पर जाग जाते. Since it's an impossible past condition, the grammar follows the rule we learned. Past perfect tense had rung in the if clause or would have plus the past participle woken up in the main clause. सो आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया है. सो इसी के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.